السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عرشیہ شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ریاست کے پانی کی نکاسی اور شہری فراہمی کے وزیر این اتم کمار ریڈی نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے حکام کو حکم دیا ہے کہ وہ اپریل کے مہینے تک اراضی کے حصول کا کام مکمل کر لے۔ جمعرات کی سہ پہر ریاستی سکریٹریٹ میں وزیر اتم کمار ریڈی کی صدارت میں نیلی کلو لفٹ اسکیم کی پیش رفت پر ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ نلگنڈا لوک سبھا رکن کنڈورو رگھویر ریڈی، قانون ساز ارکان کنڈورو جیادیر ریڈی اور سابق وزیر کنڈور وجنا ریڈی کے ساتھ انجینئر اور چیف انل کمار، نلگنڈا کے ضلع کلکٹر نارائن ریڈی، چیف انجینئر اجے کمار، ناگیشور راؤ اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ انہوں نے عہدیداروں کو مشورہ دیا ہے کہ حصول اراضی کے سلسلے میں کسانوں سے جلد مشاورت کر کے کام کو تیز کرے۔ ساتھ ہی انہوں نے محکمہ جنگلات کی زمینوں کے لیے اضافی ادائیگی کا ذکر کیا اور کہا کہ متعلقہ تجاوزات کو فوری طور پر مکمل کیا جائے۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ 23 کروڑ کے زیر التوا برقی واجبات کے ساتھ ساتھ بجلی کے بڑھے ہوئے واجبات کو فوری طور پر تجاویز بھیجے۔ اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ ناگرجنا ساگر حلقے میں نئے تعمیر شدہ چیک ڈیم کی تعمیر کے لیے انتظامی منظوری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ 5 چیک ڈیموں کے لیے ٹینڈر کا عمل فوری طور پر مکمل کیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ وائی ایس پی کینال کے تحت مرمت کی نشاندہی کی جائے اور کام فوری شروع کیا جائے۔ کوکٹ پلی حلقہ کانگریس پارٹی کے سینئر قائدین گوتو مکلا وینکٹیشور راؤ جی وی آر نے میرچل ضلع کانگریس پارٹی کے صدر سنگی ریڈی، ہری وردھن ریڈی اور کوکٹ پلی حلقہ کانگریس پارٹی انچارج بندی رمیش گارو کے ساتھ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے خاندانی شبانہ تقریب میں ملاقات کی۔ سٹی میئر گڈوال وجے لکشمی نے جمعرات کو جی ایچ ایم سی ہیڈ کوارٹر میں چوتھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر میر نے کہا ہے کہ اراکین کمیٹی کے اجلاس میں 7 آئٹمز کی منظوری دی۔ کمیٹی ممبران سے کہا گیا ہے کہ وہ شہر اور عوام کی ترقی کے لیے مفید کاموں میں تعاون کرے۔ اس موقع پر کمشنر امرپالی کٹا اور قائم کمیٹی کے ارکان بنالا گیتا پروین مدیراج، محمد مظفر حسین، محمد خدیر، محمد نصیر الدین، منی کویتا ریڈی، محمد راشد فراج الدین، اپلاپتی سریکانت، سبیحہ بیگم، اولور رویندر ریڈی، چنتلا وجے شانتی، محمد غوث الدین وغیرہ موجود تھے۔ اس میٹنگ میں افسران ای این سی ضیاء الدین، ایڈیشنل کمشنرز سنہیا سبریش، نلنی پدماوتی، گیتا رادھیکا اور یادگیری راؤ، چندرکانت ریڈی، زونل کمشنر وینکنا روی کرن اپیندر ریڈی، ہیمنت کیشو پاٹل، اپورو چوہان، سی سی پی اکاؤنٹ سری نوار اور چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہاؤسنگ ایس ای کرشنا راؤ، سی ای دیوند اور سیکرٹری ستیہ نارائنا، چیف ویٹرنری ڈاکٹر عبد الوکیل اور صفائی لیگز انجینئرز اور دیگر نے شرکت کی۔ اندرا پارک سے وی ایس ٹی این ٹی آر اسٹیڈیم تک 4 لائن بائی ڈائریکشن ایلیویشن گوڈو اور وی ایس ٹی مین روڈ اشوک نگر جنکشن آر ٹی سی کراس روڈ پر فلائی اوورز کا کام اور بیک اور جنکشن سے 3 لائن بائی ڈائریکشن ایلیویٹڈ کوورٹ یعنی 565 کروڑ روپے کی نظر ثانی شدہ تخمینہ لاگت آئی ہے۔ رام نگر سے باغ لنگم پلی وی ایس ٹی سے دوسرے درجے کی انڈین ہومی پائپ کمپنی لمیٹڈ اور وزیر سلطانہ تک سڑک کے کاموں کی تجویز ہے، جس میں سے 426 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ کمیٹی نے انتظامیہ کو پہلے منظور کی گئی رقم سے 139 کروڑ روپے کی ادائیگی کی منظوری دی۔ کوکٹ پلی کے زونل کمشنر کوہنر کی تربیت اور روزگار فراہم کرنے کی نیت سے سی ایس آر کے تحت ڈاکٹر وجے کمار داتلا فاؤنڈیشن کو بولڈرام میں 1 سال کی مدت کے لیے ماڈل مارکیٹ کی عمارت دینے اور ٹھیکہ دینے کی اجازت دینے والی کمیٹی کی منظوری کچی آبادیوں کے بے روزگار نوجوانوں کے لیے مواقع ہے۔ سائبرآباد ٹریفک پولیس اور ایس سی نے آئی ٹی اور آئی ٹی ای ایس کمپنیوں کے سیکرٹری اور ایڈمن سربراہان کے ساتھ جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا۔ ایس سی ایس سائبرآباد ٹریفک پولیس کے جوائنٹ کمشنر مسٹر جویل ڈیوس اور ڈی سی پی مادھاپور ڈاکٹر ونیت آئی پی ایس نے سائبرآباد میں آئی ٹی تنظیموں کی سیکیورٹی اور ایڈمن سربراہان کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی۔ سائبرآباد کے جوائنٹ پولیس کمشنر ٹریفک اینڈ
एडमिन मिनिस्टर और जोएल डिवस आईपीएस ने अपने खिताब में साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पिछले 6 माह के दौरान आईटी कवरेज में अहम शरियानों की सड़कों को कम करने के लिए किए गए मुख्तलिफ अक़दाम की वजाहत की है। डी जोएल डिवस ने कहा है कि ट्रैफिक मार्शल्स की तैनाती को पजीराई मिली है और रोजाना की बुनियाद पर यह ट्रैफिक के बहाव को हमवार करने में हमारी मदद कर रहा। ट्रैफिक मार्शल्स की तैनाती को इंडस्ट्री की जानिब से मजीद ट्रैफिक मार्शल्स की तैनाती के लिए मज़बूत रद्द-ए-अमल रहा। उन्होंने इंडस्ट्री पर भी जोर दिया है कि वो अपनी बुलंद व बाला इमारतों के ऊपर हाई पावर सीसीटीवी कैमरा लगाए जिसमें बिजली की बिला तात्तुल फराहमी और अच्छे बैंडविड्थ कनेक्शन होंगे, जो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ये कैमरे नामुसाद हालात में भी काम करे और तवील फासले तक मुसलसल फीड फराहम करे। मीटिंग से खिताब करते हुए डीसीपी माधापुर डॉक्टर विनीत आईपीएस ने कहा, तमाम तंजीमों को नौजवान भीड़ को मंशियात की तरफ माइल होने पर नजर रखने और मंशियात के इस्तेमाल की बुराइयों के बारे में मुस्तकिल बुनियादों पर बेदारी फैलाने की जरूरत है। उन्होंने कंपनियों पर भी जोर दिया है कि वो POSH कमेटी की काम करने पर ज्यादा चौकस रहे और इस बात को याद रखे कि खवातीन अमले के इत्मीनान के लिए हर शिकायत का इजाला किया जाए। राजेश, मौजूदा ट्रैफिक फॉर्म लीडर, ने कहा, हैदराबाद में आईटी इंडस्ट्री को मजीद खुलकर आगे आना चाहिए और ट्रैफिक मार्शल के अक़दाम की हिमायत करनी चाहिए ताकि ये मार्शल से ज्यादा तादाद में ट्रैफिक पुलिस को नफाज पर तवज्जो मरकूज करने में मदद करे। नवीद शरीक खैर ने भी इजलास से खिताब किया, कोई भी कंपनी जो ट्रैफिक सेफ्टी में अपना हिस्सा डालना चाहती है बराह करम मोबाइल नंबर 9000257058 पर राब्ता कर सकते हैं। अल मदीना कॉटन क्लॉथ मटेरियल और सोफा की मरम्मत का अजीम शान इफ्तिताह अमल में आया। मेहमान खुसूसी मिर्जा रहमत बेग MLC इंचार्ज राजेंद्र नगर, नवाजुद्दीन अहमद कॉर्पोरेटर सुलेमान नगर, मुर्तजा सीनियर रहनुमा और एरिया के सदर नटराज नगर भाइयों और दोस्तों के साथ मौजूद थे। CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा और साबिक रुकन पार्लियामेंट सैयद अजीज पाशा, CPI के कौमी सेक्रेटरी ने हनुमाकुंडा में CPI कंस्ट्रक्शन काउंसिल के इजलासों से मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है। రేవంత్ రెడ్డి చాలా పాజిటివ్ ఉన్నమాట వాస్తవం ఉండొచ్చు, రాసింది తప్పలేదు. కానీ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు స్టార్టింగ్ నుంచే అంటే అన్నప్రాసన రోజు కాల్పాల్సి పెట్టేట్టుగా మొదటి నుంచి వాళ్ళు నేషనల్ కోర్టు ట్రై చేస్తున్నారు. వాళ్ళు చేసినంత పదేళ్ళు చేసిన తర్వాత విషయం. ఇప్పుడు కొత్త ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే నాకు విచిత్రమైన ఆర్గ్యుమెంట్, ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఏం చేస్తున్నాడు, టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు బీజేపీలో కలుస్తారు, బీజేపీలో అతను గవర్నర్ అయిపోతాడు, ఇంకొకటి అతని కృష్ణని కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ నామినేట్ చేస్తున్నారు బీజేపీ. బీజేపీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, ఆ రేవంత్ రెడ్డి పోయి ఏం చెప్పారు చెప్తారంటే రేవంత్ రెడ్డి పోయి బీజేపీకి వస్తారు వాళ్ళు చెప్తారు. అంటే ఏ పార్టీ ఒక పార్టీ వాళ్ళు ఇంకొక పార్టీ నామినేట్ చేస్తారు. ఇది విచిత్రమైన ఆర్గ్యుమెంట్. రేవంత్ రెడ్డి బీజేపీకి వెళ్తారని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు బీజేపీ చేస్తారు వాళ్ళు చెప్తే ఇదంతా ఇది కొండపోత మార్పిడి, కొండ మార్పిడి అంటారే మన దగ్గర బదులు కొండ మార్పిడి అంటారు. ఆ కొండ మార్పిడిలాగా వీళ్ళు ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకుంటారు. ఎందుకు చేస్తారు ఈ పని అని డైవర్ట్ చేస్తారు ఇష్యూస్ని. ఏ ఇష్యూ వస్తుంటే ఆ ఇష్యూ పైన ఎక్స్పోజ్ చేయకుండా దాన్ని డైవర్ట్ చేసే ఉద్దేశంతో పొలిటికల్ గేమ్ ఆడుతున్నారు. పొలిటికల్ గేమ్గా కావాల్సింది. లోన్లు రద్దన్నారు, ప్రకటించారు, దానికి లోపాలు ఉన్నాయి, లోపాలు సవరించాల్సిందే. అందరికీ ఏమని మేము కోరుతున్నాము, దాని మీద ప్రాబ్లం కాదు. తర్వాత హైడ్రా వచ్చింది. विदु, जिन्होंने हाल ही में असिस्टेंट इंजीनियर तारनाका डिवीजन सिकंदराबाद के ओहदे का चार्ज संभाला है, आज ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मिसेज मोटे श्रीलता शोभन रेड्डी और TTUC के रियासती सदर मिस्टर मोटे शोभन रेड्डी ने डिप्टी मेयर पर मुबारकबाद दी। मेयर के कैंप ऑफिस तारनाका में उनसे मुलाकात हुई और इस मौके पर डिप्टी मेयर ने उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि उनके काम के अंदाज से डिवीजन में मजीद तरक्की होगी और डिवीजन को आवाम के लिए काबिल रसाई डिवीजन के तौर पर देखा जाना चाहिए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना की जनता को झूठ बोल के वोट हासिल किए हैं।
परेशान कर रहे हैं। सीएम 90 दिन में बेवा लोगों को 4000 पेंशन देने का वादा किया था, माजूरों को 6000 पेंशन देने का वादा किया था। सीएम तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब, आपने वादा किया थे 90 दिन में जो बेवा लोग होते हैं ना, जो वो लोगों को 4000 पेंशन करते हुए कि आप धोखा दे दिए रेवंत रेड्डी साहब। आप गरीब आवाम को बहुत परेशान करते रहे रेवंत रेड्डी साहब, ये गलत तरीका है। क्या 90 दिन नहीं हुआ आपको? 90 दिन नहीं हुआ, ये 9वां महीना चल रहा है रेवंत रेड्डी साहब। सीएम हमारे सीएम तेलंगाना के, आप खाली रैतु बंधु वो ही जा रहे हैं। बेवा लोग इसके शोहरा नहीं रहते हैं, जो पेंशन पे जो भरोसा करके जो पेंशनदार जो होते हैं ना, वो लोग काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। पोस्ट ऑफिस को जा रहे हैं, बराबर टाइम पे भी पेंशन नहीं मिल रही है। देखिए, फर्स्ट को आप पेंशन डालना चाहिए, उन लोगों को दे देना चाहिए। क्यों बोलते हो? थोड़े लोग वही पेंशन से किराया बन ले रहे, किराएदार भी हैं, किराए बन नहीं सक रहे। कम अज़ कम आप ख्याल करना चाहिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब। उन लोगों को कम अज़ कम एक इंदिरा घर देना चाहिए, नहीं तो उनको 1 एकड़ ज़मीन देना चाहिए। कहाँ नहीं है बोलिए आप सीएम साहब? ज़मीन कहाँ नहीं है? वो ज़मीन है, आप मेरे को बोलो, मैं बताता हूँ आपको। ज़मीन बताता हूँ मैं, हाँ कितने की दो कई हज़ार एकड़ ज़मीन है, मैं बताता हूँ आपको मैं। हाँ, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ बोले तो, जो बेवा लोगों को आप 4000 पेंशन करते बोल के बोले थे 90 दिन के अंदर, 90 दिन नहीं हुआ क्या बोल के मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दो। आप चीफ मिनिस्टर है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, इसको बोलते चीफ मिनिस्टर? जरा इसका जवाब दो। चीफ मिनिस्टर बने कैसा आप? बोलिए, आप चीफ मिनिस्टर बने कैसा? आप आवाम की तरफ से बने ना, आवाम आपको चीफ मिनिस्टर बने ना। हाँ, मैं कौन हूँ बोल के आप कन्फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, मैं मेरा नंबर एड्रेस ले लो। मैं सोशल वेलफेयर सोसाइटी का सदर हूँ मैं। मेरा सेल नंबर 8977833307। मैं एक फ्रेश रिपोर्टर भी हूँ। मैं ये रिपोर्टर के हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सोसाइटी की तरफ से बात कर रहा हूँ। मैं गरीब आवाम की तरफ से बात कर रहा हूँ। मैं आवाम की खिदमत करने वाला हूँ। मैं एक सोशल वर्कर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। मैं मेरा सवाल का जवाब दो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब। जो हैंडकप, जो माजूर लोग होते हैं, जो नाबीना लोग होते हैं, जिसको हाकिया नहीं दिखते ना, मैं वो लोगों की बात कर रहा हूँ। नाबीना लोगों को आप 6000 रुपये पेंशन करते बोले 90 दिन में, 90 दिन नहीं हुए क्या बोल के मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए। आपका फ़र्ज़ बनता है, हम लोग जो पूछे उसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि तो आवाम जनता ने आपको तनख्वाह दे रही, आपको नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी को आपको पब्लिक जनता तनख्वाह देती है। जनता जो पूछेंगे उसका सवाल का जवाब देना। कोई आके आपको पेंशन बढ़ाओ बोल के नहीं बोले, और कोई माजूर आदमी आके पेंशन बढ़ाओ बोल के नहीं बोले। आपके गरज के खातिर, आपके वोटन के खातिर आप झूठ मूठ बोल के आप वोट दला लिए, तो फिर आप पेंशन बढ़ाते बोल के झूठ क्यों बोले? आप झूठ बोले नहीं बोले। आप ये 9वां महीना हो रहा है चीफ मिनिस्टर साहब, फिर 90 दिन नहीं हुआ क्या पूछ रहा हूँ? 19 डेज में आप सदानंद सर्टिफिकेट, जिसके पास सदानंद सर्टिफिकेट है ना, मैं वो लोगों की बात कर रहा हूँ जो पैरा नहीं रहे थे, उनको आप 6000 पेंशन करते बोले। क्यों नहीं करे? जो नाबीना लोग होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, उनको 6000 रुपये पेंशन करते बोले। क्यों नहीं करे अभी तक? जो हाथा पैरा नहीं रहते, मजबूर लोग रहते हैं, जिसके पास सदानंद सर्टिफिकेट जिसके पास है, मैं वही लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं वो लोगों को पेंशन क्यों नहीं बढ़ाए? ये महीने में बढ़ा रहा हूँ मैं, वो महीने में बढ़ा रहा हूँ मैं। क्या को हुल्लू क्यों बना रहे भाई? पब्लिक को क्यों छूतिया बना रहे? क्या सब लोग छूतिया बनते हैं? रेवंत रेड्डी साहब, आपको गुस्सा रहूँगा मैं बोल रहा हूँ बोल के। रेवंत रेड्डी साहब, हकीकत बोल रहा हूँ, तुम्हारे में दम है तो जो है वो कर लो मेरे पे। मैं आपको फ़ोन नंबर भी दिया हूँ, इन्हीं टाइम आप कभी भी फ़ोन कर ले सकते। मैं आया तो आपका ज़बान दिए थे, आप माजूर लोगों को सदानंद सर्टिफिकेट है, इस लोगों को आप 6000 रुपये पेंशन अमल करते बोल के बोले थे। 90 दिन नहीं हुए क्या बोल के बोल रहा हूँ? अगर नहीं है तो तुम्हारे में दम है तो रविंद्र भारती में फिर मीटिंग लगाओ, मैं तुमसे तो सवाल करूँगा। अगर मेरे सवाल का जवाब देंगे तो आप मर्द है, अगर नहीं जवाब नहीं देंगे तो 1 साल आपकी सीएम की पोस्ट मेरे दे सकते हैं क्या? मैं आपसे ओपन चैलेंज करता हूँ। है दम है तो बोलो, दम नहीं है तो फिर आप झूठ क्यों बोले? पब्लिक को, आवाम को क्यों धोखा दिया आप? देखिए, टीआरएस पार्टी के केसीआर को तुम्हारे को फ़र्क क्या पड़ रहा है? टीआरएस के सीएम केसीआर भी धोखा दिया है, तुम भी धोखा दे रहे हैं। वो तो दोनों पॉलिसी चल रहे क्या? ये दोनों एक बोल रहे क्या? हाँ, मैं मारे से क्या करता हूँ, तू रोज से क्या करो बोल के
पब्लिक के सामने हुल्लू बना रहे क्या? पब्लिक सब आपको हुल्लू बनने वाले नहीं है, सब समझ के अब तुमको हुल्लू बना के गुल्लू बना डालते हैं। अब मेरी बात समझा करो रेवंत रेड्डी साहब, अभी भी मैं तुमको बोल रहा हूँ, मैं ये 8वां महीना है ना, ये 8वें महीने में अभी दे रहे सो पेंशन हैंडीकैप वालों को, सदानंद सर्टिफिकेट वालों को, नाबीना लोगों को, अंधे लोग बोलते हैं, नाबीना बोलते मालूम है, इसको हाँ क्या नहीं है, तुम्हारे हाँ क्या है ना, है ना, मैं वो लोगों की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे को हाँ क्या है, खाना है, तुम्हारे पैरा है, हाथा है, तुमको सब है ना रेवंत रेड्डी साहब। तो फिर ये माजूर लोगों को आप क्यों तकलीफ दे रहे हैं? आप माजूर लोगों की बदवा लगती है आपको, गारत होके आते आप, आपको जो भी गरीब को धोखा देंगे ना, कोड़ की बीमारी आएंगी। गरीब को जो झूठ बोलेंगे ना, उन कुत्ते की मौत मरेंगा। खुली बात बोल रहा हूँ मैं, ऐसा बात बोल रहा हूँ। लोगों को, गरीब आदमियों को आप जो परेशानी कर रहे हैं ना, आप खुद परेशान हो जाएंगे, बाद में फिर सर को हाथ लगाना पड़ता है। रेवंत रेड्डी साहब, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी ये 8वें महीने में पेंशन लोगों को 6,000 खर्चे मुझे बोले थे, हाँ, आपको 6,000 रुपये पेंशन अमल करना था, आप तक क्यों नहीं करे आप? अब जो बेवा लोग होते ना, जिसको शोहरा नहीं रहते ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, फिर भी खुला बोल रहा हूँ, शोहरा नहीं रहते, जिसको मर्दा नहीं रहते, जो बेवा लोग हैं 50 साल 60 साल 70 साल 30 साल के जो बेवा होते ना, वो लोगों को आप 4,000 पेंशन देते बोले, अभी तक क्यों नहीं दिए भाई? इसका जवाब तो देना ना आप। जब कोई एक मियाँ भाई अगर पूछेंगा तो मीडिया भाइयों को भी जवाब नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? आपके नेता लोग गलती कर रहे बोल के जवाब नहीं दे रहे। ये बात सही बोल रहा हूँ ना मैं, आप इसको दबा देते, इनको नहीं रहे भाई ऐसा बात बोल रहा बोल के। हाँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं फ़ोन नंबर भी दे दिया हूँ। मैं एक रिपोर्टर की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी का सदर हूँ, मैं एक आवाम को खिदमत करने वाला हूँ, मैं एक जनता को सेवा करने वाला हूँ। मैं आप सेवा नहीं कर सकते, झूठ बोल के, लोगों के तलवे चाट के, पैरों पड़ के, उसके घर में हमाम बाथरूम धो के वोटा हासिल करें ना। सीएम रेवंत रेड्डी साहब, ज़रा तो आपको ज़रा तो आप अकल होना चाहिए। हमारे जनता के तुपेल पे, जनता के सदके पे आप लोग आज MLA बने हुए, MP बने हुए, आप चीफ मिनिस्टर बने हुए, आपको भी तनख्वाह पब्लिक दे रही है, दे रही नहीं दे रही? फिर आप जो पेंशन दे रहे, आपके घर से नहीं दे रहे ना, आप ऐसा पसीना टपका के नहीं दे रहे ना। आवाम का पैसा आवाम को दे बोल रहे, जनता का पैसा जनता को दे बोल रहे। आप जनता को आप 10 रुपये दे रहे हैं, लेकिन आप जनता का नहीं 100 रुपये खा रहे ना, वो जनता को समझ में नहीं आ रहा है, जनता को उतना गुमराह कर दे रहे आप लोग। बात सही बोल रहा है रेवंत रेड्डी साहब, इस पर गौर करिए मेहरबानी करके। जो माजूर लोगों को है, आप जो वादा किए हैं 6,000 रुपये पेंशन देने का, आप फ़ौरन से फ़ौरन जल्द से जल्द उनको 6,000 रुपये पेंशन अमल कर दीजिए। क्यों बोलते, पब्लिक नहीं बोली, हम आप पेंशन बढ़ाए तो आपको वोट डाल दो बोल के नहीं बोली, आप अपनी खुदी से बोले। क्यों बोले? आपके गरज है बोल के, अपने मतलबी से बोले हैं। इसलिए तो बोल रहा हूँ, आप जल्द से जल्द आप ये महीने में पेंशन अमल करना चाहिए। सदानंद सर्टिफिकेट है इस लोगों को 6,000 रुपये पेंशन अमल कर दीजिए। जो बेवा लोग होते, जो शोहरा नहीं रहते हैं, वो लोगों को 4,000 रुपये पेंशन अभी अमल करना बोलते। हाँ, रहा सवाल हमारे तेलंगाना के मादर चौदह भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल, हमारे जर्नलिस्ट मित्रों को। देखो, मैं भी एक रिपोर्टर हूँ ना, मैं खुद अपने रिपोर्टरों को बोल रहा हूँ, हमारे रिपोर्टर हम बिक गए, गुलामगिरी कर रहे, लेकिन हम अल्लाह की गुलामगिरी करते, नेता लोगों की गुलामगिरी नहीं करते। चीफ मिनिस्टर साहब, तुमको जो करना है कर लो, मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा बाल भी पाका नहीं कर सकते। मैं आपसे ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, अगर ये महीने में पेंशन बढ़ा के नहीं देंगे ना, फिर देख लिया आते से महीने में, 9वां महीने में क्या असर होने वाला है। आप जनता पब्लिक क्या जवाब देंगी, आप उसको जवाब नहीं दे सकेंगे। इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जल्द से जल्द उनको अमल कर दीजिए। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। कार अशोक, दूसरा शदीद जख्मी। मुकामी बाशिंदों के मुताबिक ये मौत शंकरपल्ली मंडल में हुई है। सिंगापुरम गांव के चंडेपा जंगारेड्डी के जुमेरात की रात 8:30 बजे मौके पर ही मौत हो गई, जब उनकी गाड़ी का काचे रेड्डी गोडा गेट के करीब मोलमा लोपो में अशोक लीलैंड की गाड़ी से टकरा गई। वहां मौजूद मोटरसाइकिल का शंकरपल्ली ललिता अस्पताल में इलाज चल रहा है, क्योंकि इसकी बीवी के हाथ पर शदीद चोटें आई है। मुतवफ़ी को जंगारेड्डी चिविल्ला सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकम्मल तफसीलात मालूम होना बाकी है।
भैंसा के मोहम्मद फैसल 26 साल नौजवान बंगाला गली वल्द मोहम्मद फयाज मालिक दूध घर मार्केट एरिया का कल रात बोथन उरूस में दोस्तों के साथ जाने के दौरान नवी पेट के करीब अब्बापुर इलाके में एक भयानक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया। नाश और जख्मियों को निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस हादसे की तला पर भैंसा के मुसलमानों में गम व बेचैनी का माहौल पैदा हो गया, जबकि मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया वज़लई सदर मजलिस ने निजामाबाद मजलिसी कायदीन को इत्तला देकर निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजा और फौरन भैंसा से मजलिस के वफद को मोहम्मद अब्दुल माजिद नुमाइंदा काउंसलर टाउन जनरल सेक्रेटरी के हमरा निजामाबाद के लिए रवाना किया, जहां मजलिसी कायदीन ने पोस्टमार्टम के लिए पुलिस अहदेदारों से बातचीत करते हुए तमाम कार्रवाई में अहम किरदार अंजाम देकर जख्मियों के इलाज के लिए डॉक्टर से बातचीत की। आज सुबह बाद पोस्टमार्टम मोहम्मद फैसल की मैयत उनके मकान बंगाला गली को लाया गया। बाद नमाज असर मस्जिद दरगाह शरीफ में नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन इहाता वाहिद गरीब नवाज कब्रिस्तान दरगाह शरीफ में अमल में आई। चीफ रशिंग ऑफिसर हैदराबाद और डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर हैदराबाद के हुक्म के मुताबिक हम ACSO यकापुरा सर्कल हैदराबाद और टीम ने MLS पॉइंट से फराहम करदा चावल की तस्दीक और जांच के सिलसिले में आंगनवाड़ी सेंटर, मिड डे मील स्कूल, हॉस्टल का दौरा किया। इस मंदरजा वाला हिदायत पर और चावल के नमूने इकट्ठे किए और प्रिंसिपल के साथ बातचीत की और तलबा के साथ नाश्ता और दोपहर का खाना खाया और चावल के थैलियों में हवा के साथ मुनासिब तरीके से जखीरा करने के लिए हिफ्जान सेहत को बरकरार रखने की हिदायत की और फूड फाइबर्स किंडल्स के इस्तेमाल की हिदायत भी थी। इस चावल में जरूरी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। ज़ेलेंस्की जज्बाती, मोदी की तसल्ली। मालूम हुआ है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यूक्रेन का दौरा कर रहे सदर ज़ेलेंस्की मोदी का इस्तकबाल करते वक्त जज्बाती हो गए। रूसी हमलों में जान की बाजी हारने वाले बच्चों की तस्वीरें देखते हुए वो जज्बाती हो गए थे। मोदी ने उनके कंधे पर थपकी दी और तसल्ली दी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर की वहशियाना इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ एहतजाज के तसलसल में 10वें दिन रिम्स हॉस्पिटल आदिलाबाद के जूनियर डॉक्टर्स ने जुमा के रोज रिम्स हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में एक मेगा खून अतिया कैंपस का एहतमाम किया था ताकि आम लोगों में बेदारी लाई जा सके और उन्हें बुराई के खिलाफ और तमाम खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जूनियर डॉक्टर्स की लड़ाई में साथ देने की तरकीब दी जा सके। रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौर ने शिरकत करते हुए मेगा खून अतिया कैंप का इफ्तिताह किया और इस मौके पर जूनियर डॉक्टर्स के नुमाइंदे का रोनिया ने कहा है कि रियासती हुकूमत के सामने चंद मुतालिबात पेश किए गए ताकि डॉक्टरों और दीगर तिब्बी पेशावर अफराद बिलखुसूस खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। हम इंतजार कर रहे हैं कि रियासती हुकूमत हमें मुस्बित जवाब देगी और हमारे मुतालिबात को नाफिज करेगी। उन्होंने मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि मज़कूरा मुतालिबात पर अमल दरामद तक गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रहेगी। मशहूर डॉक्टर के रहनुमा डॉक्टर दिनेती सुरीधर, जिन्होंने जुमा को कलिपालम के करीब नई रेड्डी गारी फैमिली रेस्टोरेंट और ढाबे की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की, सबसे पहले उन्होंने ज्योति को रोशन किया और रमन्ना के नौजवानों को काटा। इस प्रोग्राम में कलिपलम गांव के बुजुर्गों और दीगर ने शिरकत की। टीपीसीसी के तर्जुमान सत्यम श्रीरंगम ने कहा है कि बीआरएस कायदीन पर तनकीद कर रहे हैं कि सीएम रेवंत रेड्डी ने किसानों और देवताओं को धोखा दिया है। आपने 10 सालों में जो कर्ज मुआफ किया वो किसानों के सूद के लिए भी काफी नहीं था। हमने अपना वादा पूरा किया और कर्ज मुआफ कर दिया। यहाँ तक कि जिन किसानों पर 2 लाख का कर्ज है उनके ऊपर के बकायाजात भी माफ कर दिए जाएंगे। कुछ लोगों को मुख्तलिफ वजूहात की वजह से कर्ज माफी नहीं मिली। हुकूमत का कहना है कि अगर आप हुक्काम से शिकायत करेंगे तो वो कर्ज माफ कर देंगे। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर केटीआर और पार्टी के सीनियर कायदीन, जिन्होंने रियासती डीजीपी से बीआरएस कारकुनों पर कांग्रेस पार्टी के हमलों और पुलिस की लापरवाह रवैये के बारे में शिकायत की। केटीआर ने कहा है कि कल 2 वाकयात हुए, उनमें से मुतल्लिक सबूत के साथ डीजीपी से शिकायत की गई है और गदारी किशोर की क़ियादत में एक तालिब इल्म रहनुमा और हुकूमत के साबिक़ रुकन हमने
तिरुमला गिरी में पुरअमन तरीके से जमहूरी तरीके से किसानों के एहतजाज की पहल की। नशे में धुत 50 कांग्रेसी गुंडों ने अचानक पत्थरों, अंडे और हथौड़े के बमों से हमला किया। अगर हमारे लोग मर जाते तो कांग्रेस के उन 50 हुजूम में से एक भी न बचा, लेकिन हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, इसलिए कोई मज़ाहमत नहीं की गई। ये हैरत की बात थी कि पुलिस ने हमारे एहतजाज से मुतल्लिक खैमिया गिरा दिया। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।